Good morning students, welcome again to your science class. Students, today we will continue a new chapter, chapter number 3, that is fiber to fabric. And in today's class we will learn about fibers, fabric, wool and wool production. Students, you can see we all wear clothes and clothes help us to make us to look us good. It protect us from heat, cold and other insects also. And beside this, the clothes makes us look good. All the clothes are made up of fibers. Okay, so importance of the clothing कि we wear clothes and there are lot of things. Importance of the clothes, first of all the primary function of clothing is to improve the comfort of our wearer. कि हमारे कंफर्ट को इम्प्रूव करता है. आपने देखा होगा कि हम जो भी क्लोथ पहनते हैं उससे हम खुद अपने आप को डिसेंट फील करते हैं, एक अच्छा हमारा लुक आता है. बिसाइड दिस इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम sunburn, wind damage, cold climates, thermal insulation, etc. It protects the wearer from rough surfaces, rash causing plants, insects bites, splinters, etc. Okay, clothes are made up of fabrics which is made up of fibers. जो भी क्लोथ होता है, जैसे कि मान लीजिए एक आपने कोट पहना तो कोट के लिए आप कपड़ा लाते हैं, तो दैट क्लोथ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैब्रिक. कपड़ा जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज़ कॉल्ड द फैब्रिक. एंड ऑल द फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स. आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी फाइबर होता है, फैब्रिक होता है, उसके अंदर इस तरीके से लाइंस ड्रॉ होती है. कभी भी आप क्लोथ को ऑब्जर्व कीजिएगा और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बनी हुई होती है. इट मीन्स कि वो इस तरीके से बुना जाता है. द फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स. यार्न बोलते हैं बेटा धागों को, जो धागे होते हैं वो यार्न है. एंड आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. द फाइबर्स आर वेरी थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच फैब्रिक्स क्लोथ को ही कहते हैं आर मेड अप ऑफ. बेसिकली कॉटन, नायलॉन, वूल, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ fibers. Okay, now fibers are of two types, natural fibers and the synthetic fibers. Natural fibers, we get natural fibers from the plant fibers or from the animal fibers. Plant fibers like cotton, jute, etc. and animal wool and silk. Okay, now let's see the fibers we obtain from the natural fibers and the synthetic fibers. Cotton, silk, wool, jute, linen, coir, these all are the natural fibers. And the synthetic fibers are the rayon, polyester, dacron, nylon, splinters, acrylic. These are the fabric obtained from the man-made. Now let's learn about the animal fibers, yani the fibers which we obtain from animals, either from their skin. Okay, wool is obtained from sheep, goat, yak. Basically we are talking about the wool. ठीक है, wool यानी ऊन की बात कर रहे हैं. और wool is obtained from sheep. The main source of wool is sheep, goat, yak, camel, llama, alpaca, etc. And silk is obtained from silkworm. Now fleece and wool bearing animals, यानी कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा शीप के बारे में बात कर रहे थे कि दीज एनिमल्स हैव द आउट स्किन हैविंग द वूल. तो उनकी जो स्किन होती है जिसमें वूल लगे हुए होते हैं, वूल फाइबर्स, तो दैट वी कॉल्ड एज फ्लीस. तो फ्लीस एंड द वूल बेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, एनिमल, कैमल, याक bear two types of hairs. First is the coarse hair and the fine soft hair. Coarse यानी दरदरा, उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी होती है. and the fine soft hair होते हैं, अंदर के साइड में छोटे छोटे से hairs होते हैं. The fine soft hair is found close to the skin of in such animals. The fine soft hair of animals is called the fleece. कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो अंदर की साइड में स्किन से टच किए हुए जो स्किन हेयर होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, वी कॉल इट फ्लीस. एनिमल्स हैविंग द फाइन सॉफ्ट हेयर फ्लीस ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड वूल बियरिंग एनिमल्स. ओके, नाउ व्हाट इज वूल? Wool is a dense warm coat of sheep called the fleece.
वूल क्या होता है, शीप के या याक इन एनिमल्स की जो आउटर कवरिंग होती है जहाँ पर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट हेयर, वी कॉल्ड इट फ्लीस. द हेयर ऑफ शीप हैज़ मैनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ दैट मेक वेल सुटेड फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन. बेटा हर तरीके की स्किन या फ्लीस को वी आर नॉट यूज, स्पेशली उनकी क्वालिटीज़ को देख के हम उन फ्लीस को यूज़ करते हैं और उनसे वूल को प्रिपेयर करते हैं. ओके, इट पुल्स मॉइस्चर अवे फ्रॉम द स्किन. वूल हैज़ सेवरल क्वालिटीज़ दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम हेयर और फर. हम लोग बेसिकली फर से ज़्यादा वूलन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वूलन क्वालिटीज़. उनकी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं. एंड इट ग्रोज इन स्टेपल्स, क्लस्टर्स. जब भी वूल आप देखेंगे शिप के अंदर तो वो क्लस्टर्स में ग्रो करता है. ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर जैसे फर के अंदर होता है वो ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं होता. वूल इज़ फेवर्ड फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन बिकॉज इट इज़ ईजी टू वर्क विद एंड टेक डाई वेरी वेल. मतलब वो ईजिली डाई हो जाते हैं. एनिमल दैट यील्ड वूल इज़ sheep. The most common animal of wool yielding animal is sheep. Now merino. बेटा a fine wool breed originated from Spain. मेरिनो sheep जो है ये स्पेन में मिलती है और ये जो है सबसे फाइनेस्ट वूल गिविंग एनिमल है. ठीक है, मेरिनो हार्डीनेस एंड लॉन्गिटिविटी होती है इसके अंदर. फेस एंड लेग्स आर वाइट इन स्किन. ये तो सब एनिमल के डिस्क्रिप्शन है. बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ओके यहाँ पर ये जस्ट स्किन मेरिनो की क्वालिटीज़ बता रखी है. यू कैन रीड इट के रैम्स मोस्टली हैव हैवी स्पाइरल हॉर्न्स होते हैं. नाउ वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस, हेयर और शीप. ये है द मोस्ट कॉमन वूल इज़ शीप वूल. ओके, दिस इज़ द अंगोरा गोट, सिंपल गोट, याक, लामा, alpaca and the camel. If anyone asks you write the name of animals which gives wool, so you can write the name. Okay, angora goat के beside angora goat there is angora rabbit also. Although machinery can make the process much faster, in most ways the process is the same. तो बेसिकली जो प्रोसेस है वूल प्रोडक्शन के अंदर कि हाउ कैन वी गेट द वूल इज़ फर्स्ट इज़ द शेयरिंग द शीप, यानी कि शीप की बॉडी की शेविंग की जाती है. एंड देन क्लीनिंग द वूल, गार्डिंग द वूल, स्पिनिंग द वूल इनटू yarn, वीविंग एंड knitting and dyeing. बेटा you can see from this figure that how does the shearing is done. This you can see from the book also. Then क्लीनिंग एंड स्कॉल्डिंग. क्लीनिंग का मतलब होता है जो भी वूल या फ्लीस रिमूव की जाती है बॉडी से उसको पहले हॉट वाटर के अंदर बॉईल किया जाता है जिससे कि जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाती है और जो भी कोई जर्म्स या इंसेक्ट्स अगर स्किन के ऊपर रह गया था वो सब वहाँ ख़त्म हो जाते हैं. एंड देन फिर स्कटलिंग इन द ग्रेडिंग की जाती है जो अलग अलग उसको ड्राई करने के बाद उसकी सेपरेशन किया जाता है जिसको हम लोग सॉर्टिंग भी कहते हैं. सॉर्टिंग करने के बाद हम उसको फिर वापस से ड्राई करते हैं. ड्राई करने के बाद उसकी बेलिंग की जाती है. बेलिंग का मतलब होता है जो भी वूल होती है उसको एक बॉल के थ्रू आगे से आगे पास ऑन किया जाता है और फिर उसको यार्न के रूप में कलेक्ट किया जाता है. यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो दिस इज द शिप. वी गेट वूल फ्रॉम द शिप. ये है टफ्ट्स ऑफ द वूल. पहले उसको जब फाइबर्स होता है उसको इस तरीके से किया जाता है और टफ्ट स्टोरेज होता है. यहाँ पर इसको बैल्स यानी कि बॉल के रूप में बनाया जाता है और फिर निटिंग की जाती है. ठीक है, इसी तरीके से स्पिनिंग होती है वूल की. यहाँ पर हम लोग एक चरखा टाइप का होता है जिससे उसको स्पिन कर लेते हैं और ये है इसको क्लीनिंग करने का. जैसे कि शीप है, शीप की शेयरिंग की गई, शेयरिंग के बाद उसकी क्लीनिंग की जा रही है. देन ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग रिसाइकलिंग होता है. रिसाइकलिंग में चाहे तो स्ट्रिंग के रूप में कर दो चाहे टफ्ट ऑफ वूल के रूप में कर दीजिए. और दूसरा है कारपेट्स, जैकेट्स, स्वेटर्स वगैरह इससे प्रिपेयर किए जाते हैं. नाउ बिकॉज वूल को प्रिपेयर करना मतलब बहुत इजी नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है. बेसिकली देयर आर सम हेल्थ हजार्ड्स यानी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं. लाइक शिप कैन गेट फैटल बैक्टीरियल डिजीज. शिप्स को भी
लाइक शेप को भी कुछ डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि जब उनको कट लगता है, शेविंग की जाती है तो कुछ कट लगते हैं जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, स्पेशली द एंथ्रेक्स विच कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस। कि अगर सपोज़ कि जो उनको कुछ डिजीज़ हो गई है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, और उसके कांटेक्ट में अगर ह्यूमन बीइंग आते हैं तो उनको वो डिजीज़ कॉज हो जाती है। यू कैन सी कि इस तरीके से फफोले हो जाते हैं और पूरी बॉडी में, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, मतलब पेनिंग होता है। थ्रू इन्फेक्टेड मीट ऑफ वूल and cause death. Earlier, this disease commonly infected people who worked as salters in wool industries. This disease is therefore called the salters disease. You can see students कि ना this is the salter disease, कि किस तरीके से जो फफोले होते हैं वो उनके पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। और इट इज़ द फैटल मीन्स कि अगर एक बार हो जाए और आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उससे डेथ भी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि अगर किसी शीप को या किसी एनिमल को एंथ्रेक्स डिजीज़ या फिर सॉल्टर डिजीज़ हुई है और आपने उसका मीट ईट कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो डिजीज़ आप तक भी स्प्रेड हो जाएगी। सो बी केयरफुल ऑफ इट. If you have any doubt, please ask me. Thank you.